Welcome student. Today I am going to teach how to find the inverse of a matrix. But the method is elementary operation. Here elementary operations are two kinds. One is elementary row operation, other is elementary column operation. And from in examination point of view, one question of 6 marks coming from this slot only. So see what is the method to find the inverse of a matrix by using elementary operation. Before that, we have to know about the equivalent matrix. What is equivalent matrix? Like equivalent fraction is what? Equivalent fraction is that fraction where we multiply a fraction. Suppose 2 by 3 is a fraction and we have to find the equivalent of 2 by 3. We can multiply it by any scalar quantity. Suppose we multiply it by 2, then it is 4 by 6. 2 by 3 equal to 2 by 3 into 3 by, this is 3, 6 by 9. So 4 by 6, 6 by 9, these are called equivalent to 2 by 3. This is called equivalent fraction. Here I used the operation is multiplication. We can use here as division also. So by using two operations, into and divide, we get the equivalent fractions. In similar way, equivalent matrix. Equivalent matrix is what? Two matrices A and B. Means you have two matrices A and B and said to be equivalent if one is obtained from the other by one or more elementary operations. In that case, plus or into is there, divide or multiplication is there, but here we don't know what are the elementary operations, but how to find the equivalent fraction. So two matrices A and B said to be equivalent if one is obtained from the other by one or more elementary operations, and we write like this: A is equivalent to B. So first of all, how many elementary operations we have, that we have to see. Elementary operation. There are two types of elementary operations. One is elementary row operations. Elementary row operation, and other is elementary column operation. Column operations. So there are two types of elementary operations. One is elementary row and other is elementary column. Now one by one we have to see what is elementary operation by row or by column. See, this side elementary by elementary row operation, and this side by elementary column operation. So
elementary row operations. First operation, like add operations means where we know earlier in arithmetics, plus minus into divide, these are called operations. Here in matrices also, by elementary operations we are having three operations. First one, interchange of any two rows. We can interchange any two rows. Similar way, first column operation is we can interchange of any two columns. Clear? So first operation is what? In a matrix we can interchange any two rows. Means Ri, one row is there, so Ri interchange with Rj. Suppose Ri, Rj both are different rows, so R1 can, suppose it is R1, it is R2, R1 and R2 we can interchange. Okay, here column can be interchanged, any two column can be interchanged. This is first kind of operations. Here it is by row and here it is in column. Next, means how many operations we have? We have three operations. So one what we can do, we can interchange any two rows or any two column. The second one matrix multiplication of the elements of a multiplication, clear, of the elements of a row by a non-zero number, multiplication of the elements of a row by a non-zero number. Clear? So here same thing, multiplication of the elements of a row, instead of row it is column, by a non-zero number. We can multiply in any one of the row by any scalar quantity, like R1 can be Ri interchange with Ri changes to k times Ri, means we can interchange. First one is interchange, second one we can multiply any row by or any column by any non-zero number. This is the second operation. This is Ci can changes to k times Ci. This is the second one. It means first is what? We can interchange. हम लोग कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. इसी तरह यहाँ पर कोई भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. उसके बाद किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? इसके बाद थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट. multiplying each element of a row, okay, by a non-zero number, means multiplying each element of a row. In similar way,
multiplying each element of a column by any non-zero number. Okay, here number 3, multiplying each element of a column by a non-zero number. Then what we do? After multiplying by a non-zero number, and then we have to add or subtract. Okay, by a non-zero number, then adding what we multiply, that part, adding with the corresponding elements of any other row. We can, instead of addition, we can subtract also. After adding, sometime it may be subtraction. Clear? So we can subtract. Here same thing, multiplying each element of a column by a non-zero number. पहले किसी भी रो में किसी non-zero नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी के करस्पॉन्डिंग मैंने रो में हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम बाय ए non-zero नंबर एंड देन एडिंग द corresponding elements of any other column. So it is what? It is Ri changes to Ri plus k टाइम्स Rj, यानी किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. दीज आर द चेंजेस. सो हियर Ci changes to Ci plus k टाइम्स Cj. ठीक है. तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारा 3 होता है. पहला, कोई भी दो रो को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड रो ऑपरेशन है, किसी भी रो में किसी non-zero नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. तीसरा, किसी भी रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. यानी वी हैव 3 ऑपरेशंस ओनली. यही 3 काम हम कर सकते हैं. इसी को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं. यह है रो और यहाँ पर है कॉलम. यानी कोई भी दो कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं. इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि इसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से कोई ऑपरेशंस लगा दें. यही 3 ऑपरेशंस लगाना है. डिटरमिनेंट में भी इसी तरह से कुछ होता है. तो वहां पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंसेस है. ये नहीं कि इसका चीज उसमें मिक्स कर देना है, उसका चीज इसमें मिक्स कर देना है. इसीलिए ध्यान रखना है कि इसमें हम 3 ही काम कर सकते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट क्या है? कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. सेकेंड क्या है? किसी रो में किसी non-zero नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. थर्ड, किसी भी रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर ये पहला ऑपरेशन, कोई भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज, किसी भी कॉलम में किसी दूसरे किसी भी कॉलम में कोई non-zero नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और तीसरा, किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के मल्टीपल्स को ऐड या
सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये था एलिमेंट्री ऑपरेशंस बाय रो और यहाँ था एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। वी हैव two operations in one slot. Like in row operations we having three things. We can interchange any two rows, we can multiply by a non-zero number to a row, and we can multiply in one row and we have to add to another row. That multiple we have to add with another row. Same process is here. Okay, after that, what is the purpose for finding the knowing these methods, knowing the operations for finding the inverse of a matrix, or we can say equivalent of a matrix. So we have to apply only these operations for finding the equivalent matrix. Now, after this, invertible matrix, what it is? Invertible matrix, it is what? Suppose 2 is a number and when we multiply it by 1 by 2, then answer is 1. So if it is 1 is called multiplicative identity, so we can say inverse of 2 is 1 by 2 and inverse of 1 by 2 is 2. So here also invertible matrices is what? A square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix okay of order, square matrix B of order n such that AB equal to BA equal to I, like 2 into half equal to half into 2 equal to 1. Same thing, A into B and B into A, if it is 1. So if it is 1 means 1 by 2 is the inverse of 2 and 2 is the inverse of 1 by 2. So same thing, A और B का प्रोडक्ट अगर BA के बराबर हो और इसका वैल्यू I के बराबर हो, I means identity matrix, then A is called the inverse of B and B is called the inverse of A. Clear? This is invertible matrices, means a square matrix A of order n is said to be invertible. A is called invertible only when if you multiply with the another matrix B and if I got the result I. Suppose inverse of 3 is 1 by 3, when if you multiply this 3 by 1 by 3, then multiplicative identity will come, then only we can say 1 by 3 is the inverse of 3. Clear? So same thing, A is called invertible if we have one matrix, another matrix, that is B of order n, and when we multiply then the result is I, then only we can say A is invertible. Okay, here also, and just A is invertible means inverse of B is A. Okay, then we can say also then B is called the inverse of A. Okay, B is called the inverse of A, and we write, how we write?
B is the inverse of A. So A inverse is equal to what? B. In this way we can represent the invertible matrix. Okay. Now here one more point is there. Inverse of a matrix is always unique. This also in fill in the blanks it may be asked. Inverse of a matrix is what? Unique. This is always unique. Inverse of a matrix, okay, is what? We can say like this: every invertible square matrix has unique inverse. Unique inverse means inverse is always unique. Clear? After knowing the invertible matrix, now how to find the inverse of a matrix, and this is of 6-mark question from this lot. How to find the inverse by using elementary operations. If it is written elementary operations, then you are free to solve by row or by column. If it is written by column or by row, then you are bounded to solve by, if it is row, then you have to solve by row. If it is column, then you have to solve by column. Now, inverse of a matrix by elementary row operation. Clear? So A equal to what we write? IA when if it is by row, and if it is by column, then you have to write A equal to IA. This is what? Inverse of a matrix by elementary row operation. And if it is by column, then that time A equal to AI. Okay. When it is by row and when it is by column. जब रो से बनाना होगा तो मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है A equal to IA. This is pre multiplication and here it is post. यहाँ पर I pre में है, यहाँ I post multiply है, मैंने बाद में है. Clear? So I A equal to IB. Clear? So how we solve? What are the method to find the inverse? कैसे बनाते हैं inverse? सबसे पहले A equal to IA लिखा हुआ है. क्लियर? अब इसको हम ऐसे भी देख सकते थे पहले कि इनवर्स कैसे निकालेंगे. तो मान लिए कि B को A से मल्टीप्लाई करने पे I आ रहा है. ठीक है. अब हम दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो इसको क्या लिखेंगे? I into A inverse. This is A inverse and this is what? I. So A inverse equal to BI. So A inverse equal to B. ठीक है. अगर ये कंडीशन आया तो A इनवर्स का वैल्यू B कैसे हुआ ये बताया. ठीक है. ये थोड़ा उसमें क्लियर नहीं किए थे इसलिए फिर से ये बता दिए. अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस से कैसे बनाते हैं इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्टेप्स क्या है कि अगर बाय रो आता है और बाय कॉलम आएगा तो बनाते कैसे हैं. यहां पर यूज करते हैं A इक्वल टू IA, यहां पर A इक्वल टू AI. ठीक है. और मेरा टारगेट होगा कि इस A को I बनाना. ठीक है. इस A को I बनाना और ये I, जैसे इसको I बनाना मतलब कि यूज करना है. कौन सा चीज यूज करना है? एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके I बनाना है. ऐसा नहीं कि
कुछ भी मल्टीप्लाई करके आई बना देंगे और रेंडमली नहीं बनाएंगे। इसका सिस्टम है, वो सिस्टम ज़्यादा जरूरी है समझना। जैसे इसको हम आई बनाने का कोशिश करेंगे, अपने आप एक नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा और ये आ गया ए। और जैसे ए ये लाइन आया, तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया कि हम लोग इसको अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ऐसा रिजल्ट आएगा। अब इसको हम ए इनवर्स कर सकते हैं, इसको बी आई बोल सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। अब फाइनली ये क्या हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी ये वाला जो बी है वही ए इनवर्स कहलाएगा। तो करते क्या है कि पहले ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे, इस ए को आई बनाएंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो ऑटोमेटिकली ये आई दूसरे मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा और यही बी ए का इनवर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें इस ए को आई बनाएंगे, इसको टच नहीं करते इसमें, तो इसमें भी इसको टच नहीं करेंगे, ये आई अपने आप बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टारगेट क्या है, इस ए को आई बनाना, यहाँ भी इस ए को आई बनाना। अब उस आई को बनाने के लिए, ए को आई बनाने के लिए वी हैविंग 3 ऑपरेशंस इन ए रो एंड 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन इन ए कॉलम। तो वो ऑपरेशंस क्या था, फिर से एक बार बता रहे हैं, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो में हम कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, किसी रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन लेंगे, उससे इसको क्लियर करते हैं। जैसे फाइंड द इनवर्स ए इक्वल टू 3 - 1 - 4 2 by using रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन से इसको बनाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले a इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ए, रो से बनाना है। इस a की जगह इस a का वैल्यू डालेंगे 3 - 4 - 1 2। i का वैल्यू होगा, बिकॉज इट इज i2 1 0 0 1, ये आ गया a। ठीक है, तो टारगेट क्या है कि इस a को क्या बनाना है, i। तो जब रो से बनाना होगा, ये जो हम बता रहे हैं यही समझना है, पूरे इंटायर लेक्चर का यही मेन पार्ट है कि जब हमको रो से बनाना होगा तो कॉलम वाइज चलते हैं, मूव्स अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज चलेंगे। और जब कॉलम से बनाना होगा तो यहां पर कॉलम की जगह क्या हो जाएगा, रो वाइज। ठीक है, रो ऑपरेशन मूवमेंट मेरा कॉलम वाइज होगा, कॉलम ऑपरेशन मूवमेंट मेरा रो वाइज होगा। तो कॉलम वाइज का मतलब क्या हुआ, इसको किससे बनाना है, रो से बनाना है। तो कॉलम वाइज मतलब ऐसे चलना है हमको। पहले इस ए को आई बनाने के लिए, इस ए को आई बनाने के लिए हम कॉलम वाइज चलेंगे। तो कॉलम वाइज में पहले 1 लाएंगे। अब ये नहीं कि आई बनाना तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 0 लिख दिए, रेंडमली नहीं लाना है। ऐसा नहीं कि आई बनाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो 3 काम ही करेंगे और सिस्टम क्या है, कॉलम वाइज चलेंगे। अगर इस सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो फंसना ही है इस क्वेश्चन में। इसलिए जैसे हम बता रहे हैं ये बहुत ही सिस्टमैटिक है और इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। जब हमको कॉलम वाइज रो वाइज बनाना है, कॉलम वाइज मूवमेंट होगा। तो कॉलम का मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ 1 रहेगा, उसके बाद ये 0, ये कॉलम है। पहले 1 लाएंगे, फिर 0 लाएंगे, फिर यहाँ 1 लाएंगे, यहाँ 0 लाएंगे। ठीक है, इस तरीका से आई बनाएंगे। अगर 3/3 का रहता, पहले 1 लाते, फिर 2 0 लाएंगे, फिर 1 लाएंगे, ये 2 0 लाएंगे, फिर यहाँ 1, ये 2 0। यानी व्हेन it is by row operation then we have to move according to column, and when it is column operation तो column operations में क्या करेंगे,
कॉलम ऑपरेशंस में रो वाइज चलेंगे, 1 0 0 लाएंगे, यहाँ 1 लाएंगे, यहाँ 0 लाएंगे, यहाँ 1 लाएंगे, यहाँ 0 लाएंगे, ये कॉलम ऑपरेशंस के लिए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 लाना है। 1 बनाने के लिए मेरे पास 3 ही मेथड है। वी कैन इंटरचेंज एनी रोज, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाई एनी नॉन जीरो नंबर। तो इसको सीधा 1 बनाना है तो R1 चेंजेस टू R1, दिस इज R1, रो वाइज बना रहे हैं। कॉलम वाइज बनाते हैं तो C1 लिखते हैं, ठीक है। रो ऑपरेशंस में R ही रहेगा, लेकिन डिटरमिनेंट में कहीं रो भी यूज होता है, कॉलम भी होता है। इस सेम क्वेश्चन में एक बार हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, सेकेंड बार में कॉलम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जब रो से बनाना है तो कॉलम का कहीं भी चर्चा नहीं होगा, ठीक है। ये तो मूवमेंट के बारे में बात की, मूवमेंट कॉलम वाइज होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कॉलम का कोई चीज हम लिखेंगे। ऑपरेशनल में सिर्फ रो यूज होगा। R1 मतलब ये चेंज करेगा, R1 चेंजेस टू व्हाट, 1/3 R1, यानी इसको 1/3 से इंटू कर देंगे तो 1 हो जाएगा। बस बाकी को कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले एक नंबर को पकड़ना है। दिस इज 1/3, दिस इज -1/3, देयर इज नो चेंज इन R2 एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या आ गया, 1/3 0 0 1, ये हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 हो जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 1, दिस इज -1/3, दिस इज 1/3, दिस है ओके। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो जैसे 1 बनता है ये ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा, क्योंकि दिस इज R2 चेंजेस टू R2 प्लस 4 टाइम्स R1। अगर 4 से इंटू करके इसमें ऐड कर दिया तो 0 बन जाएगा। मतलब इसी को टारगेट करना है, बाकी एज इट इज होगा। करते हैं ये 1 0। अब ये तो देयर इज नो चेंज इन R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 रह गया एज इट इज। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो 2 - 4/3 6, 6 - 4/3 2/3, ये हो गया 2/3। इसमें ये सेम रहेगा, यहाँ आते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 4/3 देगा। इसमें कितना देगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले 1 लाए 0 लाए, क्या लाएंगे, इसको 1 लाएंगे। इसको 1 लाने के लिए R2 चेंजेस टू कितना है, ये 1 लाने के लिए 3/2 R2, ठीक है। तो 3/2 R2 से इंटू करो, देयर इज नो चेंज इन R1, कोई चेंज नहीं आया, ये आ गया 1। अब यहाँ 1/3 0, देयर इज नो चेंज। अब इसमें 3/2 से करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसमें इंटू जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 3 कैंसिल, इसमें आएगा 3/2, ये आ गया A, ठीक है। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना बहुत सिंपल, हाँ रेंडमली करेंगे तो क्या होगा कि कभी इधर 1 आएगा इधर 0 आएगा, तो जब इधर उधर करेंगे तो ये बदल जाएगा। अब इस तरह से बनाएंगे तो जो हम एक बार ला दिए वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए बोले कॉलम वाइज मूवमेंट करना है। 1 लाना है, उसके बाद 0 लाना है, फिर यहाँ क्या आएगा, इसको 0 बनाना है। कौन सा है वो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस जो 1 है वो कांस्टेंट का काम करता है, उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे इसमें 1 में 1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 1/3 R2 यहाँ कांस्टेंट है, तो लेफ्ट साइड तो आ गया 1 0 0 1, उसको देखना भी नहीं है, वो आएगा ही। देयर इज नो चेंज इन R2, तो R2 एज इट इज रहेगा, 2 और 3/2 लिख दिए पहले से। अब सिर्फ R1 में हमको चेंज करना है, तो R1 में क्या करना है, R1 में इसमें 1/3 यानी 2/3 से ऐड इंटू करके इसमें ऐड कर देना है, तो 2 इंटू 1/3 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें 3/2 में अगर 1/3 से हाफ हो जाएगा, हाफ को ऐड करेंगे, हाफ हो गया, तो ये आ गया I, ये एक नया मैट्रिक्स आ गया, और ये A था, ये तो मेरा पहले से है। तो ये अगर सिचुएशन आएगा तो A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, B,
यानी 1 1/2 2 3/2 इज द इनवर्स ऑफ ए। अब जैसे कोई बोला कि 2 का इनवर्स हाफ है तो कैसे प्रूफ होगा? तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम यहाँ कि ए का इनवर्स अगर ये है तो ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ जाएंगे कि गलत है। ठीक है, एक 3/3 का करते हैं। ये थोड़ा बड़ा होता है और वी हैव ओनली 6 स्टेप, 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा और 6 स्टेप में ही इसको हम बनाएंगे। ठीक है, और जो तरीका बताएं वैसे ही बनाना है। फाइंड ए इनवर्स। अगर तरीका फॉलो नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन में फंसना ही है। फाइंड ए इनवर्स, तो ए का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, 1 3 -2 और दूसरा -3 0 -5 2 5 0, यही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 3 -2 and -3 0 -5 and 2 5 0 and we have to find the inverse. So by row operation, by elementary row ऑपरेशन। क्लियर? रो ऑपरेशन से इसको बनाना है। तो रो ऑपरेशन से कैसे बनेगा इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले A = IA, ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा तो यहां पर A की जगह पे क्या आएगा? 1। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है और 6 स्टेप में बनाएंगे। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। -3 0 -5, इसके बाद आ गया 2 5 0। अब I3 लिखना है यहाँ, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करना है? मेरा क्या टारगेट है? मेरा टारगेट है कि इसको आई बनाना। तो आई बनाना है, किस मेथड से बनाना है? कॉलम रो ऑपरेशन से बनाना था इनवर्स। तो हम कैसे चलेंगे? मूवमेंट क्या होगा मेरा? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब ऐसे। तो यहाँ पर तो 1 पहले से है तो सिर्फ ये दोनों को 0 बनाएंगे। तो ये क्या है मेरा? R2 चेंजेस टू, ये क्या है? R3। तो R2 चेंजेस टू, R2 में क्या चेंज करेंगे? इसमें इसको देखना है, बाकी को देखना ही नहीं है। इसको 0 बनाना तो क्या करना है? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके से ऐड कर देंगे। तो R2 प्लस थ्राइस ऑफ R1, यानी इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको 0 बनाना है तो R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो जैसे ये काम करेंगे तो ये बनेगा 1 0 0। देयर इज नो चेंज इन R1, R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 अपना एज इट इज पोजिशन ले लिया। अब इसमें R2 में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो ये 9 आ जाएगा। इसमें 3 से करेंगे तो कितना आएगा? -6 और -6 -5 -11। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है तो -1 देगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? ये 4 दे देगा, क्योंकि 2 2 जा 4, माइनस माइनस +4 +0। इस साइड जो काम इस तरफ करेंगे वही काम इधर भी करेंगे। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है तो R1 ऐसे ही रहेगा 1 0 0। इधर क्या आएगा? चेंज है इसमें। क्या चेंज है? R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 हो गया इसका वैल्यू, ये हो गया 1, ये हो गया 0। ठीक है, ये कितना आएगा? -2, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आएगा 0, ये आ गया 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कॉलम वाइज चलेंगे तो 1 0 0, इसके बाद इसको 1 लाएंगे, फिर इसको 2 को 0 लाएंगे। 6 स्टेप हम इसलिए बोल रहे थे कि पहले हमको 1 लाना रहता है, दिस इज 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप में 2 0, थर्ड स्टेप में 1, फोर्थ स्टेप में 0, फिफ्थ स्टेप 1, सिक्स स्टेप में ये 2 0, यानी 6 मार्क क्वेश्चन 6 स्टेप में हम लोग बनाएंगे। चलिए, इसको हम 1 बनाना चाह रहे हैं। क्या है ये? R2 चेंजेस टू 1/9 R2। ठीक है, R2 में हम क्या किए? 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिए,
क्योंकि ये इसको 1 बनाना था, तो देयर इज नो चेंज इन R1, 1 3 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद ये होगा 0 1 माइनस 11/9, ठीक है। और इसमें भी कोई चेंज नहीं, 0 माइनस 1 4। सावधानी से लिखना है, और इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, इसके अलावा इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, ठीक है। इसके बाद इधर 1 0 0, ये हो गया 1/3, 1/9 0, और ये क्या आएगा -2 0 1, दिस इज ए, ठीक है। 1/3 1/9 0, और ये क्या आ गया -2 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये 1 जैसे आया, ये 2 को 0 बनाएंगे, तो ये 2 को 0 बनाना है, तो ये दो क्या क्या है, तो एक R2 है और एक R3 है, सॉरी R2 नहीं है, R1 और R3, इन दोनों को 0 बनाना है। तो R1 में क्या करना है, तो R1 में माइनस करना है थ्राइस ऑफ R2, क्योंकि R2 मेरा कांस्टेंट का काम करेगा, यहाँ पर R1 कांस्टेंट का काम कर रहा था, इसमें R2 करेगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरा R3 करेगा, उसी में मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो R2 यहाँ 1 है, तो इसको 0 बनाना, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिए, इसको 0 बनाना, तो इसमें इसको जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो R3 यानी R3 प्लस R1 R2, R3 में चेंज करना है, R2 को ऐड कर देना है, तो क्या आ गया, इस तरफ आया 1 0 0, ये 0 1 0 हो गया, और इसमें अब क्या होगा, तो ये -2 है, -11/9 है, करना क्या था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो -2 माइनस ऑफ कितना 3 इंटू माइनस इतना, तो -11/3, तो -2 प्लस 11/3 -6 प्लस 11/3, ये औरली भी कर सकते हैं, कितना आएगा 5/3, क्लियर हो रहा है, तो ये आ गया 5/3। देयर इज नो चेंज इन R2 में तो कोई चेंजेस नहीं है, R1 और R3 में, तो ये -11/9 रहेगा। अब इसमें चेंज करना है, तो इसको ऐड कर देना है, इसको -11/9 प्लस 4 करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम 36, ये आएगा 25/9, ठीक है। इसके बाद जो वर्क इधर के वही वर्क उधर करेंगे। तो सबसे पहले देयर इज नो चेंज इन R2, R2 को फोटोकॉपी करना है, 1/3 1/9 0, इसलिए तो R2 एज इट इज आ गया। अब R1 में क्या क्या चेंजेस था, तो उधर में देखना है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3 आएगा, और इसमें क्या करना है, माइनस कर देना, -1/3, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो -1/3 -2, तो कितना आएगा -6, यानी प्लस -5/3, ठीक है। अब इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/9, और ये तो 1 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बच गया, फिर से बता दे रहे एक बार, कॉलम रो ऑपरेशन से बनाना है, कॉलम वाइज चलेंगे, तो पहले 1 लाए, 2 0 लाए, फिर 1 लाए, 2 0 लाए, अभी तक यहाँ कर लिए हम। अब मेरा थर्ड टारगेट क्या है, 1 लाना, फिर 2 0 लाना, तो इसको क्या बनाना, पहले 1 बनाना, तो 1 बनाना बहुत ईजी है, R3 चेंजेस टू 9/25 R3। अगर इस सिस्टमेटिक मेथड से अगर नहीं बनेगा तो गलती होना ही होना है, इसमें अच्छा लोग फंस जाता है कैलकुलेशन में, जबकि कुछ है नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसलिए सावधानी से बनाना है, रो ऑपरेशन से बनाना है, तो कॉलम वाइज चलेंगे, 1 लाएंगे, 2 0 लाएंगे, 1 लाएंगे, 2 0 लाएंगे, 1 लाएंगे, 2 0 लाएंगे, और 6 ही स्टेप होगा, इसमें तो 5 होगा क्योंकि एक तो पहले से 1 था, ठीक है। तो
इसको पहले बना लेते हैं। R3 0, पहले तो देयर इज नो चेंज इन R2 और R1, उसको एज इट इज लिख देते हैं। माइनस ये हो गया 0 1 माइनस 11/9। अच्छा, इसके बाद क्या आ गया 0 0, ये हो गया 1, क्योंकि 25/9 था, अब 9/25 से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर क्या है 0 माइनस 1/3 0, 1/3 1/9 0। अब इसको 9/25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 नीचे आएगा 3, माइनस 3/5 होगा, माइनस 3/5। इसके बाद क्या आएगा 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/25, ठीक है। इसके बाद 9/25 और ये a। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। R2 है और एक R3 है, इसी में हमको चेंज करना है। तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है, सॉरी R1 में और R1 और R2 को 0 बनाना है, क्योंकि ये तो 1 है तो 2 0 ये होगा। तो R1 में 0 बनाने के लिए हेल्प किसका लेंगे, एक बार R1 का लेते हैं, एक बार R2 का हेल्प लिए, अब क्या लेंगे R3 का, क्योंकि ये 1 है मेरा, इसी में कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। तो होगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस 5/3 R3। जो 1/3 किसमें, ये 1 कहाँ है R3 में, तो R3 में 5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, 0 बन जाएगा। अब R2 को 0 बनाना है, तो इसमें 11/9 से मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड कर देंगे, तो R2 प्लस 11/9 R3। तो जैसे ये सिस्टम करेंगे तो लेफ्ट साइड तो हमको कुछ देखना ही नहीं है, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, यही तो हम बनाए हैं इसलिए आएगा ही। ऐसा नहीं कि आई बनाना है तो कहीं 1 पहले, ये सिस्टम में हम कहीं भी रेंडमली इस चीज को नहीं बना सकते, सिस्टमैटिक बनाएंगे, कॉलम वाइज 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे चलेंगे। कब, जब रो ऑपरेशन से बनाना है। लेकिन जब ये कॉलम ऑपरेशन से बनाना होगा 1 2 0, फिर यहाँ 1 ये 2 0, यहाँ 1 ये 2 0, ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं राइट साइड, देयर इज नो चेंज इन R3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए उसको हम पहले से लिख लेते हैं। क्या है माइनस 3/5 1/25 9/25, ठीक है। अब मेरा R2 ही चलते पहले, R2 में प्लस करना है 11/9 इंटू R3, तो माइनस 3/5 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 11/9 से, कितना आएगा 3 3 जा 9, तो आ गया माइनस 11/15, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर देना है 1/3, कितना आएगा एलसीएम 15, ये तो माइनस 11 रहेगा, ये हो गया 5, माइनस 6/15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ गया माइनस 2/5, दिस इज माइनस 2/5, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/2 25 आएगा, और फिर जब 1/9 में ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 4, नीचे में 225 है तो 4/25 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 9/25 में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 11/9 से, तो 11/9 से करेंगे तो 9 9 कैंसिल, 11/25 क्या आएगा 11/25, 11/25, ठीक है। चलिए, बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूरी तरह से कवर नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान से देखना है, इसलिए हम बोल भी रहे हैं डिजिट को। अब क्या करना है, R1 में क्या लिखेंगे, R1 में इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 5/3 करेंगे तो ये क्या आएगा 5/3 3 -1, और ऊपर में क्या है 0 है, तो 0 - 1, ठीक है। तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1, क्योंकि माइनस करना है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसमें 5/3 से करेंगे तो 1/15 आएगा, और -1/3 में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2/5 देगा, ठीक है, -2/5 देगा। और लास्ट वाला में
इसमें क्या करना है, फिर 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 25, 3×3 = 9, तो कितना आएगा -3/5, और ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/5 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है ये देखिए, दिस इज आई, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब है कि आई का वैल्यू अगर बी ए के बराबर आ रहा है तो देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो बी के बराबर होगा। और बी का वैल्यू क्या है जी, तो बी का वैल्यू है 1 -2/5, इसके बाद 3/5, इसके बाद -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25। सो दिस द रिजल्ट। ये आपका इनवर्स है, किस मेथड से, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। और कॉलम ऑपरेशंस में भी यही होगा। अंतर क्या है कि रो ऑपरेशन से कॉलम वाइज चलेंगे और कॉलम ऑपरेशन से बनाना होगा तो रो वाइज चलेंगे, और यहाँ पर कहीं भी आर के अलावा सी का यूज नहीं किया है, मतलब रो ऑपरेशन में सिर्फ रो होगा। लेकिन जो मैट्रिसेस पढ़ लेता है वो बच्चा लोग फिर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट में यूज करना है, जैसे यहाँ रो लगाए तो नेक्स्ट स्टेप में कॉलम लगा सकते हैं, यहाँ कॉलम लगाए तो फिर रो लगा सकते हैं, तो उसका चीज वो इसमें अप्लाई कर देता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 चीज से चौथा चीज नहीं करेंगे। कोई रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक नोट है, इसमें याद रखना है कि ये नोट रखना है याद कि ऑपरेशन लगाने के बाद अगर किसी एक रो का सब एलिमेंट 0 आ जाए तब वहां पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ एंड ऑन अप्लाइंग one or more elementary ऑपरेशन, या रो ऑपरेशन बोल देते हैं, रो ऑपरेशन ऑन ए, कोई मैट्रिक्स ए है, वी ऑब्टेन ऑल जीरो क्लियर, ऑल जीरो इन वन और मोर रोज। ठीक है, मतलब एक रो में एक या एक से अधिक रो में सबका सब एलिमेंट 0 आ जाए, देन वी से दैट ए इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे। ये जब डिटर्मिनेंट जब पढ़ते हैं उससे फिर एक प्रोसेस है बाय एडजॉइंट मेथड, वहां पर इसका प्रोसेस अलग है, तो उसको बाद में बताएंगे, पहले खाली इसको बता दे, उसका जब वहां पढ़ाएंगे तो फिर इस पे तुरंत समझने में दिक्कत नहीं। एक्चुअली डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिटर्मिनेंट में पढ़ाया नहीं है, समझ में आएगा नहीं डिटर्मिनेंट के बारे में। इसीलिए फिलहाल ये जानना है कि एलिमेंट्री लगाने के बाद अगर सारा का सारा एलिमेंट किसी रो का 0 आ जाए तो वहाँ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ए का वैल्यू मान लेते हैं 6 -3 -2 1, ऐसे भी इसको चेक करेंगे तो आएगा 6 और ये -6 0, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा 0। ऐसे बनाते हैं डिटरमिनेंट, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, माइनस इतना इंटू इतना, बाद में इसको और अच्छा से बताएंगे। फिलहाल इसको बनाने के लिए देखते हैं, ए इक्वल टू आइए, ये आ गया 6 -3 -2 1, ये आ गया 1 0 0 1। अब एलिमेंट्री लगाना है तो पहले क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो R1 चेंजेस टू 1/6 R1, तो जैसे ये आ गया 1, इसमें -1/2, ये -2 1,
1/6 0 0 1 आ गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। ये जीरो कैसे बनेगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस सॉरी प्लस R1, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 1, ये हो गया 0 -1/2। अब इसमें ऐड करेंगे तो 1 माइनस हाफ, ये आ गया प्लस हाफ, ये आ गया 1/6 0, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 1/6, ये 1, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 चेंजेस टू 2 इंटू R2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस हाफ, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1/6, ये आ गया 0। अब इसमें कितना से इंटू करना है, 2 से, तो ये 1/3, ये कितना आएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाएंगे, कैसे बनेगा 0, तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हाफ से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 1 माइनस हाफ, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किए और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 और इसमें क्या कर देंगे, सब ऐड करेंगे तो ये 1/6। को लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा चेक कर लिया जाए क्वेश्चन। ये 6, ये तो 0 आ रहा है, यानी ये एग्जैक्ट मैट्रिक्स वही है। तो R1 1/6, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई किए, ये 1 आ गया, ये 1/6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना है माइनस हाफ, यहाँ तक ठीक है, -2 1, ये भी सही है, 1/6 0 0 1। हाँ, अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना था, तो इसको ऐड करना से 0 नहीं आ रहा था, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ R1 होगा। तो ट्वाइस ऑफ R1 किए तो 0 आया, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे यही 0 आ जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये क्या है 1। तो यहां पर देख रहे हो कि LHS ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑल द एंट्रीज आर 0। तो जब इसका ऑल एंट्री 0 आया, कब, आफ्टर अप्लाइंग दी ऑपरेशन, तो यहीं पर मेरा काम रुक जाएगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं आना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद सारा का सारा एंट्री किसी रो में 0 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जब डिटर्मिनेंट पढ़ा लेंगे उस टाइम हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो डायरेक्ट देख लेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है, इफ इट इज 0 then we can say inverse does not exist. So in this slot, one of the 6-mark question is by using elementary operation find the inverse. This is very important. Clear? Okay.